generous introduction. कहने को तो बस हम सब physicians हैं and we have different hats to take care of our patients also. So at times I'm a general pediatrician, sometimes I'm a pediatric nephrologist and sometimes I'm an educationist. So depend करता है मेरा mood क्या है, उस दिन मैं वो वाला hat पहन लेती हूँ. So I like to interact with the audience and for that I would like you to be very alert क्योंकि मेरी बात जब मैं बात करती हूँ तो मुझे लोगों का सोना या ऊँगना या मोबाइल पर टेक्सटिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स को पता है मैं उनकी मोबाइल रख लेती हूँ और राउंड के बाद वापस करती हूँ. और अगर वो हंस रहे हो किसी बात में मोबाइल को देख के तो फिर मैं कहती हूँ सबके साथ शेयर करना है. खुशी बांटी जाए तो बढ़ती है. ठीक है, तो मोबाइल अंदर या साइलेंट पे हो जाए थोड़ी देर के लिए. सो लेट्स स्टार्ट एंड जो मेरा काम है इस वक्त इस थोड़ी सी देर के अंदर आपको एक्यूट किडनी इंजरी के लिए कहते हैं ना हमारा एक थैला होता है, उम्र यार की एक जंबील होती है. कहानी सुनी है उम्र यार की? सुनी हुई है ना? जंबील के अंदर से चीज़ें निकलती रहती हैं एंड देन पूरी दुनिया, और वो बहुत हल्की फुल्की सी लेके फिरता रहता है. सो ये दास्तान अमीर हमज़ा और इन सब के अंदर ये उम्र यार की जंबील की कहानी मौजूद है. तो उम्र यार एक्चुअली चालाक आदमी था, उसकी जंबील में से हर वक्त कुछ निकल आता था. तो इसी तरह किडनी इंजरी को जब आप मैनेज करते हैं तो शुरू में आप अपनी जंबील में से कुछ चीज़ें निकालते हैं. So अंग्रेजी में जंबील इज़ अ टूल किट. सो लेट्स स्टार्ट. So my aim right now is to timely medical management of AKI once you identify that your patient is going into a kidney injury mode. ये सारे वो जंबील के अंदर के ये सारे टूल किट्स जो हैं ये जंबील के अंदर रखे हुए हैं आपके पास. ठीक है ना? ई क्लियरेंस बीना ने बड़ी डिटेल में बात की है. So I won't talk much about it, but still if you have any questions, park it, we'll answer it. Urine output, किडी को गाइडलाइन के अंदर बात हुई, राइट, कि उसका ड्रॉप हमने देखना है और अगर एनीयूरिया हो जाता है इट्स मोर देन 12 hours then we are hitting something. Volume status, and we'll walk through it as we go through. So E clearance, like we spoke earlier, ठीक है, we have to memorize these constants. These constants are not magic numbers just we pulled out from somewhere. These constants are based on the muscle mass of that age group. If you think a neonate is born with less muscle mass, so your constant is less. As the child grows, the constant increases. Adolescent males have got big muscle mass. The more the athletic the adolescent are, the more muscle they will have. So that's why boys have got a 0.7 constant. And these constants are put in the numerator when we are calculating and the height in centimeters. So we went over it already. Second is your urine output, which goes by the KDIGO guideline. You follow the stage 1, 2 and 3 very beautifully, and then once you hit the stage 3, it means game over. नहीं होता आप लोग मोबाइल पे गेम खेलते हुए लिखते हैं गेम ओवर हो रहा है. So then you have to change your strategy of care. One thing I would like to talk about a little more in detail is volume status, because here your diuretics come into play. What we know is that renal failure can be euvolemic, hypovolemic pre-renal we know, and we give fluid boluses and we bring the child out. That is most easy way of managing an AKI is hypovolemic AKI. But then when your patient is in euvolemia or the patient is in hypervolemic state, then the story starts. Misjudgment in that area, आपको जरा से भी अगर आपने जजमेंट सही से नहीं की तो आपने अगर यूवोलेमिक AKI को ठोक के डायूरेटिक दे दिया तो उसका क्रेटिनिन बेहतर नहीं हो सकता. दूसरे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि डायूरेटिक से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं. Hypervolemic, we know, like Dr. Veena said, hypervolemia can be deadly in ICU setting. And Dr. Anwar must be emphasizing it again and again. Intake बताओ, output बताओ, we have worked with it. Bolus लगाओ, bolus नहीं लगाओ, fluid रोक दो. So that is the game, okay? That is the game, because otherwise you will be making the kidney injury worse if you are giving excessive fluids to a hypervolemic child, or to a euvolemic child. If you are giving too much of diuretics and fluids again, you will throw the child into hypervolemia. So this is the formula that we discussed, percentage of fluid overload, and which increases the risk of AKI. So daily fluid balance should be assessed in a child. Okay. So
What happens when there is fluid overload, right? Your JVP will get elevated, hepatomegaly is there, pulmonary edema will develop, and the third spacing is an old term, but the fluid will accumulate in the places where it's not supposed to be. So that is why the fluid dynamics changes, the heart pumps less, and again the preload जो है वो that goes up. So that is why kidney and heart are in a symbiotic relationship. Always remember, ये दोनों की बहुत दोस्ती है. जैसे ही आपने इन दोनों के अंदर लड़ाई कर दी तो कार्डियोरीनल सिंड्रोम्स फिर सेट इन होने शुरू होते हैं. So important is collect urine and plasma when you are calculating fractional excretion of any study that you do in serum and in urine. You need to collect the samples at the same point in time. ये नहीं कि अभी राउंड हो गया और इलेक्ट्रोलाइट सुबह कराए थे तो शाम में हम यूरिन स्टडी करेंगे. FeNA is a fractional excretion of sodium is a very important tool in diagnosing AKI. So you check the sodium in urine and in the plasma. You check the creatinine in both and you multiply it by 100. It's expressed in percentages, and less than 1 is pre-renal, 1%, and more than 1% points towards the renal. So that is an important tool and very easily doable. Most of the labs do renal sodium and perform a renal creatinine. So ये इस तरह से याद रखें कि excretion, fractional excretion of sodium would decrease when it's pre-renal. Why? Can somebody throw light on it? क्यों सोडियम कम हो जाता है pre-renal के अंदर? लॉजिक क्या है इसकी? थोड़ी सी लॉजिक कुछ बताएंगे? थोड़ा सा अपना फिजियोलॉजी की तरफ चले जाओ, थोड़ा सा. Exactly, the body is trying to conserve things to keep up the fluid volume. So pre-renal, your sodium जो है आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन कहेगा ना सोडियम रुको जरा, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे ब्लड प्रेशर को मेंटेन. So that is why your excretion, fractional excretion is low when there is a pre-renal setup. And renal के अंदर definitely there's glomerular damage, there's kidney damage, there's tubular damage. So वो चीज़ें फिर लीक आउट होनी शुरू होती हैं, इसीलिए आपकी परसेंटेज जो मोर देन 1% हो जाती है. Another thing which is not being practiced too much, but urea, fractional excretion of urea, almost the same principle, and then your less than 35% percentage would come for pre-renal risk, and for intrinsic renal risk more than 50% is intrinsic kidney. So these two tiny tools can be easily applicable if available. FeNA is available across. I know all the labs do the urinary sodium and the serum sodium along with the creatinine. चुगताई उठा लें आप, AKU लैब उठा लें आप, शौकत खानम की उठा लें, सब करें. फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया कुछ लैब्स कर रही हैं, लेकिन अभी तक इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. बट आई थिंक विद टाइम एज द अवेयरनेस विल इंक्रीज, डेफिनेटली इट वुड कम इनटू प्ले एज वेल. सो व्हेन वी आर कहते हैं ना वो जमील में से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं. अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, हमने भेजा, हमने यूरिनरी स्टडीज केमिस्ट्री भेजी, सीरम केमिस्ट्री भेजी, यूरिन केमिस्ट्री भेजी, एंड नाउ व्हाट इन्फरेंस वी कैन ड्रॉ आउट ऑफ दीज थिंग्स. सो BUN to serum creatinine ratio more than 20, pre-renal. Okay, you need a calculator, बल्कि mental math भी चल जाती है इसके अंदर. And less than 20, again we go towards renal. Then sediment in the urine is important. When there is a kidney injury, pre-renal के अंदर normal और few casts होंगे, usually हम cast देख के घबरा जाते हैं, लेकिन जब when we look at the urine in a kidney injury, muddy casts होते हैं, urine का color change हो रहा होता है, indicating injury to the glomerulus and to the tubules. Urine osmolarity more than 500, like we said कि body is crying to hold fluid, तो osmolarity भी बढ़ जाएगी. जबकि जहाँ injury हो गई तो वहाँ osmolarity जो है वो less than 350 होती है. Proteinuria, whenever there is kidney injury, always remember intrinsic kidney disease. When the kidney cries, kidney रोती किस लिए है भाई, जल्दी से बताएगा कोई? क्या क्या निकलेगा उसके आंसू? क्या होते हैं किडनी के आंसू? होते हैं प्रोटीन. जहाँ प्रोटीन नजर आता है हम थोड़े से घबरा जाते हैं और हम कहते हैं कि जरा सा एक दो दिन बाद फिर रिपीट करके देख लें जरा सा, फिर फीवर वगैरह में भी +1 का तो आ ही जाता है. एनी इन्फेक्शन वुड ब्रिंग आउट अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन, UTI would have it. But if it is persistent proteinuria with an increasing trend, then it's cry for help that the kidney is injured. Next is your urinary sodium. Like I said, FeNA we can consider, FeU we can calculate. Then
urinary sodium in itself can tell you pre-renal or renal. Less than 20 urinary sodium, pre-renal. More than 20, more than 40, renal. And then we can look at the यूरिया टू क्रेटिनिन रेशियोज हमने यहाँ देख लिए. नॉवल बायोमार्कर्स किम सिस्टैटिन सी एंड गेल. आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट. इट्स नॉट बीइंग डन एट प्रेजेंट, बट ये वाले बायोमार्कर्स बहुत जल्दी. क्रेटिनिन को बढ़ने में 72 आवर्स लगते हैं, यानी इंजरी आज हुई तो परसों पता चलेगा. ठीक है ना. तो इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं कि रीनल एंजाइना इंडेक्स भी देख लेना आईसीयू सेटिंग में बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो हमें थोड़ा पहले वार्निंग दे देता है कि भाई ये क्रेटिनिन बढ़ेगा तुम्हारा, अभी नहीं बढ़ रहा, 3 दिन बाद बढ़ेगा. सो इट्स नॉट अ वेरी गुड मार्कर. कौन सा पुलिसमैन अच्छा होता है या चौकीदार अच्छा होता है? जब वारदात हो तो उसी वक्त शोर मचाए. यह हुआ जब वारदात होकर चले गए तो बाद में शोर मचता है. लेकिन मजबूरी ये है कि दिस इज द ओनली वन वी हैव till we get the biomarkers, which are the like I'll explain it in a little while, why they are the beautiful ones. Biochemical corrections, कहते हैं ना, जिंदगी है अनासिर में ज़हूर की तरतीब, मौत क्या है भी अज्जा का परेशान होना. So when the chemistry परेशान होती है तो morbidity and mortality दोनों बढ़ता है, which you might have seen in your patients. कि जैसे देखते हो सोडियम क्लोराइड बढ़ना शुरू हो जाता है, बाइकार्ब जो है वो कम होना शुरू हो जाता है. So you correct all the electrolytes as you are managing the child. So what you do is basically you manage hyperkalemia, you manage metabolic acidosis, hypertension and hypotension both, fluid overload, calcium status has to be managed, and definitely sodium. These are in itself एक अलग कहानी है जो AKI में तो नहीं, but individually can be addressed separately if we have another workshop on electrolyte imbalances. Nephrotoxic insult, भाई इलाज वो कहते हैं ना, मेरे मसीहा ने कत्ल कर दिया, किडनी इंजरी हो रही है, हम एंटीबायोटिक्स उठा लेते हैं. एंड कैन यू नेम सम नेफ्रोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स? कोई एक तो नाम ऐसे ही बता दो. वेनकोमाइसिन है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है ना. इवन योर मीरोपेनम, इमिपेनम कैटेगरी की सारी जो नई न्यूअर एंटीबायोटिक्स हैं, बट व्हेन वी नीड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वी डेफिनेटली यूज दैट. So, but then you have to adjust them according to your creatinine clearance. Then again your Schwartz formula comes in, and every antibiotic has got their 10% renal function है या 50% है या 50% से ज़्यादा है. किसी में डोज कम करनी होती है, किसी में ड्यूरेशन बढ़ानी होती है, to save the kidney. So very important. आपने हर एंटीबायोटिक लिखने से पहले अपने से सवाल करना है, ये किडनी को तो हिट नहीं करती, और अगर करती है तो एडजस्ट करना है. Then one more thing जो है वो कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी. कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी होता है कि जब हम आईसीयू सेटिंग में या किडनी इंजरी की सेटिंग में सबसे पहले हम चाहते हैं कि इमेजिंग करें, और उसमें हमें पता चल जाता है कंट्रास्ट देना है. कंट्रास्ट इन इटसेल्फ नेफ्रोटॉक्सिक है. सो व्हेन यू आर डूइंग इमेजिंग इन अ आईसीयू सेटिंग और इन अ किडनी इंजरी सेटिंग, ऑलवेज क्वेश्चन योरसेल्फ एंड देन यू कैन मैनेज जो है ये सारी चीज़ों को पहले आप करेक्ट करेंगे. रीनल इनसफिशिएंसी, you will try to do that. Dehydration, hyperuricemia, proteinuria. If the child is diabetic, manage the glucose. Low FeNA can cause, so FeNA को भी कैलकुलेट करके देख लें, क्योंकि FeNA कम कब होता है? जब प्री-रीनल होता है. ये चीज़ें सब हो रही होंगी तो आपका ये लो आएगा. So you correct all these things, then you give the contrast, तो किडनी इंजरी नहीं होगी. अच्छा, कंट्रास्ट नेफ्रोपैथी आपको उस वक्त नजर नहीं आती है, 3 दिन के बाद क्रेटिनिन बढ़ना शुरू होता है. Then everybody सब कुछ आ रहे होते हैं आईसीयू में खड़े रहे कि ये अब क्या हो गया. एक्चुअली आपने जो कंट्रास्ट 3 दिन पहले लगाया था वो क्रेटिनिन अब बढ़ना शुरू हुआ इसके रिस्पॉन्स में. So be careful when you are doing contrast studies, and you manage this contrast. You can prevent contrast nephropathy to some extent by using a protocol which is to manage contrast nephropathy. जब मैं आपको PDF भेजूँगी उसके अंदर भी ये होंगे, and you can use an acetylcysteine about 1.5 hours prior to the procedure to protect the kidney, and then check the creatinine at 24, 48 and 72 hours. अगर 72 hours में stable creatinine है, नहीं बढ़ रहा है, suppose baseline आपका हाई भी था लेकिन अब बढ़ नहीं रहा है, तो contrast nephropathy at least is not contributing to further damage. Are we clear on that? ठीक है. फिर हम आ जाते हैं हमारे टूल्स के अंदर, डायोरेटिक्स. सबकी मोहब्बत इस कदर के लेसिक्स लगा दूं, लेसिक्स ठोक दूं, इसी तरह से हाथ से सिरिंज छीननी पड़ती है बाज़ दफ़ा. सही है. तो क्रिटिको गाइडलाइंस रिकमेंड दैट ओनली डायरेटिक्स शुड बी यूज्ड व्हेन देयर इज वॉल्यूम ओवर. ये वॉल्यूम ओवरलोड वाले पेशेंट में तो फ़ायदा है इसको देने का,
लेकिन यूवोलेमिक AKI के अंदर there is no कोई फायदा नहीं, you'll be wasting your time and the patient's length of stay बढ़ जाएगा उसका. So ideally we use loop diuretics and sometimes we पहले यूज करते थे, अब तो इतना नहीं कि ऑस्मोटिक डायरेटिक्स तो बिल्कुल भी अब यूज नहीं होते, लेकिन लूप यूज होते हैं. फॉर दैट लेसिक्स इज आवर फेवरेट. लेसिक्स का नाम लेसिक्स क्यों रखा है, फ्यूरोसमाइड क्यों नहीं कहते? लेसिक्स को लेसिक्स क्यों कहते? ऐसी नाम रख दिया. किसी का नाम पैदा होता है कहते हैं मुन्ना रख दो, किसी का बिस्मिल्लाह रख दो, किसी का अल्हम्दुलिल्लाह रख दो, किसी का हाँ दिन रख दो, किसी का रात रख दो, किसी का रमजान रख दो, किसी का शाबान रख दो. जब बच्चों के नाम तो यूं डिसाइड होते हैं ना, तो इसका द फ्यूरोसमाइड का नाम लेसिक्स क्यों रखा? और लेसिक्स इतना फेमस नाम, इट लास्ट्स फॉर 6 hours. लेसिक्स इट लास्ट फॉर 6 hours. तो जब भी आप दोगे 6 घंटे का 6 घंटे रखा, ठीक है? तो इसलिए ये नाम ज्यादा फेमस है. और नाम बेचारी का कभी पढ़ा ही नहीं फ्यूरोसमाइड का दूसरा नाम. और फ्यूरोसमाइड लोग इतना नहीं समझते, बोले लेसिक्स लगा दो. कितने लोग हैं जो उसको लेसिक्स के नाम से बोलते हैं? सारे ज्यादातर बोलते हैं, फ्यूरोसमाइड कोई नहीं बोलता इसको. Right, so when you are looking at this diagnosis of AKI, risk of AKI going towards severity on one line and harm to benefit of diuretics on the other line, and then you see if your patient is with AKI without fluid overload and the one with fluid overload. So clinical effect of diuretic improvement अगर आ रही है तो उस वाले ग्रुप में आएगी, रिस्क कम हो जाएगा. जिसका आपने डायरेटिक दिया या एल्ब्यूमिन विद डायरेटिक दिया, उसमें जो ओवरलोड वाले बच्चे हैं, जो वॉल्यूम स्टेटस नहीं है, आपने परसेंटेज कैलकुलेट की भी है, अगर नहीं है वॉल्यूम ओवरलोड में, डोंट गिव इट, इट्स नॉट गोना बेनिफिट द चाइल्ड. चलो कुछ मिथ्स हैं, लेट्स प्ले द गेम. फ्यूरोसमाइड कॉजेज AKI, यानी लेसिक्स से किडनी इंजरी हो सकती है. यस और नो? बोल दो, कोई जवाब गलत नहीं होता. मैं एक बात बता दूं, नो. गुड. तो नो, ठीक है. लेसिक्स से वॉल्यूम ओवरलोड को फायदा है, लेकिन दूसरे वाले ग्रुप में जो वॉल्यूम ओवरलोड में नहीं है, डिहाइड्रेशन करके आप फर्दर क्रेटिनिन को बढ़ा सकते हैं, मगर इंजरी नहीं होगी उसको. Furosemide and fluids together can prevent AKI in high risk patients. Furosemide with fluids. With fluids, trick क्या है? With fluid restriction, volume overload patient में can improve. इधर से आप लेसिक्स दे रहे हैं, उधर से फ्लूइड भी दे रहे हैं, वॉल्यूम ओवरलोड वाला बच्चा बैठा हुआ है, कोई बेहतरी नहीं हो. प्री लोड वाले को जरूरत नहीं है, प्री रीनल वाले को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको तो वैसे आपने खाली वॉल्यूम ही देना. ठीक, तो इसलिए यह गलत है. ठीक है. तो यू रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड देन यू यूज योर डायरेटिक एंड यू कैलकुलेट एवरी 6 hours के देना है कि नहीं देना. फ्यूरोसमाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन AKI. ठीक है, राइट और रॉन्ग? कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है. ठीक है, सो नहीं है. ठीक है. फ्यूरोसमाइड कैन किक स्टार्ट किडनी फंक्शन. नो, ये तो हम सबको पता चल गया थी, मैंने कहानी सुना दी. फ्यूरोसमाइड वर्क्स बेटर विद एल्ब्यूमिन. यस, प्लस माइनस है, कुछ स्टडीज कहती हैं कुछ नहीं, लेकिन वॉल्यूम ओवरलोड जहाँ पे थोड़ा प्रोटीन डेफिशिएंट है बच्चा, आपने दिया तो यकीनन, और स्पेशली अगर वॉल्यूम ओवरलोड वाला बच्चा हाइपोटेंसिव है, ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ाया आपने, रीनल परफ्यूजन बढ़ गई, तो लेसिक्स विल वर्क बेटर. फ्यूरोसमाइड इन्फ्यूजन इज बेटर देन पोलिसिस. फर्क नहीं है ज्यादा जो स्टडीज हुई है. फ्यूरोसमाइड कैन प्रिवेंट रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. डायरेटिक देके यूरिन बनाते रहो, डायलिसिस नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. फ्यूरोसमाइड कैन हेल्प टू वीन एन्यूरिक पेशेंट्स फ्रॉम रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. नो. Once they start making their own urine, at times when they are in volume over negative balance उनका बढ़ रहा है, positive balance पे है, तो फिर हम दे देते हैं कभी कभी उसको करने के लिए, वरना जरूरत नहीं पड़ती है. Alright, furosemide हो गया ये वाला. Furosemide diuresis after AKI implies full recovery. अगर दिया बच्चा renal replacement से निकला, आपने diuretic दिया, खूब अच्छा यूरिन आ गया, it will take its time, you have to follow it. एंड 3 महीने में जाके पता चलेगा फुल रिकवरी वाली कहानी हुई थी या नहीं हुई थी. तो डायरेटिक का कोई रोल नहीं है, एंड इन फैक्ट यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन. फ्यूरोसमाइड डायरेसिस आफ्टर फुल रिकवरी नहीं. एंड लास्ट वन इज फ्यूरोसमाइड शुड बी स्टॉप्ड इफ सीरम क्रिएटिनिन इज इंडिकेटिंग वर्सनिंग ऑफ रीनल फंक्शन. इन अ डिहाइड्रेटेड पेशेंट यू विल स्टॉप.
in a hypervolemic state, then you will look at the other causes. So much about the tools. तो जंबील में से ये सारी tools एक बार हम फटाफट दोबारा से बताइए क्या क्या थी. We'll start from the back. एक tool आप बता दें पीछे वाली में. E-clearance. चलिए next tool. Urine output. तीसरा diuretics. Okay. In hypervolemic patient. Yes. और बताते जाओ खत्म हो गए. ये सोचो. हाँ. हाँ. Rectal extraction and we know the formula. You can calculate it. Acuria. Yes. मिलता नहीं लेकिन कुछ लैब्स में मिल भी जाता है. Nephrotoxic drugs को according to clearance करेंगे. तीन हो गया. दूसरा कुछ बताओ. हाँ. ठीक है. Volume status very important. ठीक है. Assess your volume status always. ठीक है. And classify your patient in the beginning on clinical guideline. That is most important. ये क्लियरेंस किया, क्लासिफाई किया, फिर मैनेजमेंट शुरू. राइट. सो सारे जंबील के टूल्स याद हो गए सबको. चलो. सो वी आर डन हियर ऑन दिस प्रेजेंटेशन. इंटरमिटेंट डोज है, ये मैंने कहा था डाल देती हूँ. इन्फ्यूजन की डोज है. ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए आप हमेशा केयरफुल रहें, बिकॉज एक बच्चे को बहरा करके उसकी किडनी बचानी, बेचारे की जिंदगी पता नहीं, आई डोंट नो, डायबिटिक से बचेगा तो नहीं, और कान भी खराब कर दिए तो बेचारे को तो फायदा ही नहीं हुआ ना. एंड देन वेजोप्रेसर्स, ये वाली बात आ जाए. डोपामीन का एक मिसकंसेप्शन है यहाँ पर कि डोपामीन जो है वो रीनल फंक्शन को अच्छा करती है. क्या कह रहे हैं इसके बारे में? नहीं करती. खाली उस बच्चे को फायदा होगा जिसका ब्लड प्रेशर लो है. आप उसे लोबिट्रिन दें या उसको एपिनेफ्रिन दें, बाकी आप उसकी एड्रेनलिन दें, नॉर एड्रेनलिन दें, और उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगे तो परफ्यूजन की वजह से किडनी परफ्यूज होगी तो यूरिन बनेगी ना. सो हाइपोटेंसिव में दिस नहीं होता. न्यूनेटोलॉजी में जो एक नई चीज है विच आई वांट टू कन्वे द मैसेज टू न्यूनेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि थियोफाइलिन जो है कैफीन इनहिबिटर is one of the things which is now recommended to be used in children with hypoxic ischemic encephalopathy, but even by clinical guideline as one single dose, क्योंकि उससे AKI की प्रिवेंशन होती है. So न्यूनेट्स के अंदर आप अगर यूज करेंगे तो सबसे पहले तो देख लें कि क्या वजह है, उसको किडनी इंजरी हो रही है, कंजेनिटल एनामली तो नहीं है कोई, और फिर उसके बाद आपने किडनी को के ऊपर आपने देखा अगर किडनी इंजरी है खाली उसकी और कोई एनाटॉमिक डिफेक्ट नहीं है, देन यू कैन यूज 28 to 32 वीक्स की बहुत बड़ी जो है ना अवेकन स्टडी हुई थी उसके अंदर. उसके बाद ये गाइडलाइन के अंदर इसका एविडेंस आ गया है कि केफीन हेल्प्स प्रीमेच्योर न्यूनेट्स and prevents kidney injury in them, one single dose. So this is a proposed neonatal bundle of care to prevent AKI in neonates. Very important, neonatal AKI, very common we see in our ICUs, and this is the guideline and the bundle care that you should be applying to your children in neonatology. मिल जाएगा आपको हैंडआउट के अंदर. थोड़ी देर बस मुख्तसर सी बात करूंगी. ये मिलते नहीं हैं. अगर हम देखें तो ये सारे हम बायोमार्कर्स स्टडी हुए, लेकिन सबसे अच्छा बायोमार्कर जो है ना आपका ये वाला है और थोड़ा बहुत ये वाला है. एंड आई टेल यू व्हाई. इफ यू लुक एट दिस लिटिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ, सो अर्ली घंटों के अंदर जो बढ़ रहा है ना, द रेड वन इज हियर. रेड वन इज व्हाट? प्लाज्मा एंगल. ठीक है. दूसरा आपका जो बढ़ रहा है शुरू के आवर्स में लाइट ब्लू है, ये फैब है. तीसरा जो आपको शुरू के चंद घंटों में बता रहा है वो है ये वाला, दिस वन हियर. ये कहाँ गया? आई लॉस्ट इट समवेयर. हाँ, तो अगर आप देखें तो एंगल इज वन ऑफ द गुड वन. अच्छा, जो 48 आवर्स में बढ़ता है ना वो ये ब्लू वाला है जो किम है. तो फिर 70 जो डॉक्टर बीना ने एम्फसाइज किया अपने उसमें, यूरिन ही नहीं बन रहा, वॉल्यूम ओवरलोड में बचा जा रहा है. Then severe hyperkalemia, symptomatic uremia, rapidly rising urea and creatinine, fluid overload, especially with cardiac failure or pericardial effusions, uncontrolled hypertension. Beside this, symptomatic electrolyte problems, encephalopathy or seizures,
एंड प्रोलॉन्ग्ड ओलिगोरिया जो कि आपका स्टेज 3 के बाद आता है क्लिनिकल गाइडलाइन में दैट, एंड टू रिमूव एक्सोजीनस टॉक्सिन समटाइम्स वी यूज आर पीडीज फॉर आर मेटाबॉलिक बेबीज एज वेल, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक CRRT थोड़ा सा मुश्किल है न्यूबॉर्न्स के अंदर करना, तो हम इसको इससे मैनेज करते हैं. बट इट्स नॉट द आइडियल मेथड, बट रिसोर्स लिमिटेड कंट्रीज आर यूजिंग पेरिटोनियल डायलिसिस फॉर मेटाबॉलिक चिल्ड्रन. सो ये है, आपने जब आपको हैंड आउट मिलेगा तो बहुत इन अ नटशेल जो है आप देख लेंगे कि दिस इज हाउ यू वुड अप्रोच द मैनेजमेंट, द डायरेटिक्स, द डायलिसिस एंड एवरीथिंग. सो ये कार्ड की तरह से अगर अपने पास आप बाद में प्रिंट करा के रख लीजिएगा, दिस वुड कम इन हैंडी, किसी किताब में चिपका लीजिएगा या कुछ. तो आई रियली लाइक दिस वन, इट टेल्स यू द स्टेप वाइज मैनेजमेंट. सो थैंक यू वेरी मच.